Hello, my dear students. My name is Shashank Shekhar, Master Teacher of Mathematics at Vedantu. Here is my detailed introduction. Okay, today I'm going to discuss a session on KVPY for SX stream. Today's topic is function. We'll take this chapter in very detail. We'll know about the concepts describing various important features of functions, important functional identities, some important functional equations and graphical transformations, etc. etc. Alright, so talking about this chapter, mainly I have covered in this chapter, in this session, you can see I have described it as various points. Point number 1, range of functions we'll cover. We'll try to cover, I mean this is a big chapter but I have tried कि इसमें बहुत सारे जो मेन फीचर्स हैं फंक्शन चैप्टर को पूरा अच्छी तरह से हम अच्छे लेवल पे लेके जाएं. ठीक. Second is classifications of function. In this section we'll get to know about the various classification on the basis of the various characteristics of the function, like onto into function, one minimum function. Third is even odd functions. Fourth is symmetry of graphs of function. On what basis we get to know about the symmetry of the graph, about some line or some point. Alright, periodic functions, solutions of important functional equation, very important, and transformations of graph of function. So I've tried to cover all the main concepts of this chapter. So I hope you'll enjoy this session. Let's come to the first is how to get range of the function. Okay, so I'll not go in much detail but I'll describe you कि क्या क्या important considerations होते हैं while finding the range. So सबसे पहली चीज़ range आप समझ रहे हो f values. So inner to outer approach. This is basically applied to those functions in which compositions are there. जैसे f of g of h of x है. तो हम क्या करते हैं कि f of g of f of g of h of x है suppose. So इसके range के लिए we first check the range of h, then we go for g of h of x. So by putting the values of h of x, we'll get to know about the values of g of h of x, then finally f of g of x. Then various approaches are there. Point number 2, inverse approach. In this approach we try to get x in terms of y and impose condition upon y for x to be real and defined. So we'll take examples. I have taken so many examples like finding range of these functions, many more. Alright, so some special techniques. Point number 3 in which we'll see that sometimes am greater than equal to gm is applied, but here we must take precaution that the quantities upon which am gm are applied must be positive and equality must be checked. Equality comes when the quantities are equal upon which am gm is applied. Am gm is useful sometimes. Trigonometrical, the linear combination of sin x and cos x, its numerical value is always less than or equal to under root a square plus b square. We use this especially in trigonometrical function. Graphical approach is some more etc. Basic concept we can apply here special techniques में. That depends upon the function कि किस तरह के function मिले हैं हमें, कौन सा method apply करना है. Graphical approach में we generally do we plot fx roughly on the by saying its monotonicity देख के
इसका ग्राफ बनाते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर देख के, फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसका साइन स्कीम देख के, एफ डैश के साइन के बेस पे, इफ एफ डैश इज पॉजिटिव एफ इज इंक्रीजिंग, इफ एफ डैश is negative f is decreasing, and then on the basis of graph we see the topmost point and the lowermost point to find the max and mean values of the function. ठीक है, okay, so this is graphical approach. If nothing works, the graphical approach will definitely work. So we'll see one by one. We'll take for example, fx is equal to cos of tan inverse of ln of, we have to find the range of this. So how can you find the range? See, inner to outer. First of all, you'll have to see that x square plus e upon x square plus 1 का range क्या आएगा. इसको we can easily manipulate to write dividing by denominator, ऐसे लिख सकते हैं. और definitely when x square increases, x square का range तो हमें पता है 0 to infinity, close 0. When x square increases, this decreases. So finally इसका जो range आएगा, when x square is maximum infinity की तरफ जा रहा तो ये 1 आ रहा, एंड 0 लेंगे तो e आ जाएगा. ठीक है, सो ये आ गया. नाउ ln ऑफ दिस, लेट इट बी t सपोज. ठीक है, ln ऑफ, नाउ अप्लाई ln in these value as ln is log is increasing, log with base e, so you'll get 0 to 1. Then applying tan inverse ln of, you'll get tan inverse is again increasing 0 to pi, tan inverse 1 is pi by 4. Then again applying cos, alright, cos is decreasing function in 0 to pi by 4, the final value would be 1 by root 2 at pi by 4, at 0 it is 1. So final range of the function is this is the final range. Alright bachcho, so we, in this way we get the range, an inner to outer approach. Similarly in the second question you can see this is getting a function. सो यहाँ पे mod x का जो रेंज है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी होता है. इसमें tan इनवर्स लगा देते हैं तो वो आ जाएगा 0 टू पाई बाई 2. ऑलराइट, इसमें 4 बाई पाई मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आ जाएगा फिर अगेन 0 टू 4 बाई पाई ना, इट इज़ 2. ऑलराइट, एंड देन इसमें फाइनली फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालें तो रेंज ऑफ द फंक्शन विल be greatest integral part of these numbers 0 or 1. so ये दो ही पॉइंट हैं, the pair set, so in the range. alright बच्चों, so इस तरह से inner to outer approach is this. now coming to the range, especially ये जो मैंने बताया अभी आपको कि inverse approach mainly जो है mainly applied to rational functions. rational functions क्या होते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल लीनियर अपॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक. इन फंक्शंस में हम लोग जैसे क्वाड्रेटिक चैप्टर में भी आपने शायद किया हो कि वी टेक दीज फंक्शन देम एज वाई एंड वी क्रॉस मल्टीप्लाई, ट्राई टू मेक अ क्वाड्रेटिक इन एक्स एंड देन इम्पोज कंडीशन on y, I mean condition on that quadratic, that for x to be real and defined we write d greater than or equal to 0, discriminant greater than or equal to 0. From there we get the condition upon y or range of y, the possible values of y for x to be real and defined. so ये सारी बातें हैं इस क्वेश्चन में. अगर हम देखें तो जैसे सिमिलर चीज़ किया जा सकता है y लेके, सो y c x प्लस वाई डी, एफ एक्स को मैंने y बोला है, ए एक्स प्लस बी ले लिया. तो यहाँ से when you try to get x in terms of y ना, inverse approach, x in terms of y. so here we are getting what, b y into d minus b divided by a minus c y. so for x to be real and defined, y can take any real value except a by c, denominator should not be 0. so this is the range of the function. all right, यू कैन रिमेंबर इट एज कि जब भी ऐसा लीनियर अपॉन लीनियर होगा जिसमें ए डी नॉट इक्वल टू बी सी लिखा है बिकॉज द टू लीनियर मस्ट नॉट बी इक्विवेलेंट, आई मीन ए बाई सी नॉट इक्वल टू बी बाई डी, अदरवाइज वो कट जाएंगे. सो फाइनली लीनियर अपॉन लीनियर रिड्यूस फॉर्म में, सो ए रेंज होगा हमेशा ऑल रियल एक्सेप्ट द रेशियो ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट ए एंड सी, ऐसे डायरेक्टली याद रख सकते हैं आप.
फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन दिस इज अ गुड प्रॉब्लम. सी, इसमें हम कैसे कर सकते हैं, x प्लस वन बना लेते हैं बच्चों, ठीक है. सो आई एम राइटिंग y एज x प्लस वन प्लस 16 अपॉन अंडर रूट x प्लस वन. आई हैव टू सब्ट्रैक्ट वन ऑल्सो, ठीक है. इसका डोमेन दिया हुआ x ग्रेटर देन माइनस ऑब्वियसली. सो एंड यहाँ से देख सकते हैं कि एक स्पेशल तरीका हमें मिल सकता है. इफ आई कॉल आई मीन x प्लस वन एज t, तो इसमें देखिए, या अंडर रूट एक्स प्लस वन को t ले सकते हैं हम, दैट इज पॉजिटिव क्वांटिटी. अंडर रूट एक्स प्लस वन को मैंने t लिया है. और AMGM और इस तरह के जो फीचर आई मीन कंसेप्ट हैं, इसमें प्रोग्रेशन सीरीज चैप्टर में डेफिनेटली आप लोगों ने इस तरह के कुछ क्वेश्चंस किए होंगे जिसमें वी कैन ब्रेक द सेकेंड टर्म इनटू टू पार्ट्स. और यहाँ से फिर हम कह सकते हैं कि द अप्लाइंग AMGM अपॉन दीज थ्री नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 times a plus b plus c is greater than or equal to 3 times product of a b c, that is 8 square whole raised power 1 by 3 minus 1. That comes as 3 into 64 raised power 1 by 3 is 4 minus 1, that is 11. So finally range of this function is 11 to infinity. Alright, this may go to infinity, and that happens when x is, when t, you can easily get t, I think t cube is, t square is 8 by t, and t cube is 8, t is 2, and when t is 2, I mean root under x plus 1 is 2, x plus 1 is 4, x is 3. At x equal to 3 you will get the equality, and that is possible. Alright, we check the equality. Coming to the next question. So here again range problem. So we'll take another concepts also, but range pe I have taken few questions. Just see, this question looks difficult, but is actually not. Here everywhere we can see e raised power sin x is occurring. So better to take a substitution 2t minus 1 by t plus 3, where I have taken t as e raised power sin x. तो ये substitution बड़े काम आ जाते हैं. e raised power sin x का रेंज निकालना बहुत आसान है, इनर टू आउटर करके. सो ये आएगा e 1 by e टू e रेज पावर माइनस वन टू e रेज पावर वन, बिकॉज साइन एक्स है माइनस वन टू वन. यहाँ पे अगेन अच्छा, अगर हम इसको y ले लेते हैं, y एज अ फंक्शन ऑफ t, तो y dy by dx, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2 प्लस वन बाई टी स्क्वायर, विच इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है. और कोई डिसकंटिन्यूटी भी नहीं है, बिकॉज इन दिस इंटरवल फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है फॉर t इन टर्म्स ऑफ t, आई मीन दिस इज इंक्रीजिंग. सो ग्राफ विल बी लाइक दिस, और इसका जो रेंज आएगा, ठीक है. सो फ्रॉम आई मीन विथ रिस्पेक्ट टू टी एक्सिस में ना, तो यहाँ पे y मिनिमम आ जाएगा, बिकॉज दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फंक्शन, इट्स डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, इंक्रीजिंग. सो y मिनिमम विल बी व्हेन t इज 1 by, ठीक है. तो यहाँ पे आंसर है आपका t इज 1 by 2 by e माइनस e प्लस 3, एंड y max is when t is e, all right, maximum input पे, so 2e minus 1 by e plus 3. so इसका रेंज जो है हमारा आ गया obviously 2 by e minus e plus 3 to 2e minus 1 by e plus 3. इस तरह से देखें कि आप बहुत इजीली हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को भी इजीली टैकल कर सकते हैं. वी सॉ द रेंजेस ऑफ हाउ टू गेट रेंज ऑफ दीज फंक्शन, दीज आर द अप्रोचेस. सो मैंने ट्राई किया कि सब पे आपको कुछ ना कुछ एग्जाम्पल लेके दें, और अच्छे एग्जाम्पल कवर किए हमने. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन, सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव एंड बाइजेक्टिव फंक्शन. व्हाट इज मीन बाय सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव एंड बाइजेक्टिव फंक्शन. सर्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ऑन टू बेसिकली. इंजेक्टिव मीन्स 1 1. बेसिक डेफिनेशन आई थिंक आपको आइडिया होगा, बोथ 1 1 एंड ऑन टू, बोथ 1 1 एंड ऑन टू को बोलते हैं बाइजेक्टिव. तो थोड़ा बहुत रिवीजन करते हुए हम कुछ सवाल करेंगे. सो ऑन टू एंड इन टू फंक्शन, राइट. सो ऑन टू मीन्स सर्जेक्टिव, इन टू मीन्स नॉट सर्जेक्टिव बोलते हैं. 1 1 मीन्स इंजेक्टिव, और मेनी वन मीन्स नॉट इंजेक्टिव बोलते हैं. बाइजेक्टिव मीन्स इफ सम फंक्शन इज शोइंग बोथ द प्रॉपर्टीज, इट इज सर्जेक्टिव. एज सर्जेक्टिव में व्हाट वी डू here basically we compare
रेंज ऑफ द फंक्शन, और रेंज हमने देखा कैसे निकालना होता है, रेंज विद कोडोमेन। जनरली क्या होता है कि आपको फंक्शन इस फॉर्म में, अगर जब भी ऑन टू इनटू पूछा जाएगा तो इस फॉर्म में दिया रहेगा a टू b y इज इक्वल टू एफ एक्स। सो यहाँ पे b इज रिप्रेजेंटिंग कोडोमेन, a इज डोमेन। सो इस a डोमेन के साथ जो भी इसका रेंज आएगा है वैल्यूज, ठीक है, फॉर ऑल x लाइंग इन a इन द सेट है। सो जो भी रेंज आएगा उसको हम b से कंपेयर करेंगे। इफ द रेंज इज सेम एज कोडोमेन then function is on to. If range is a proper subset of codomain then function is into. Alright, ये तो पता ही था हमें। चलिए हमने रिवाइज कर लिया और इस पे हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखते हैं आगे। 1-1 मिनी 1 में मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें बेसिकली here we check for the repeating values, repeating और कह सकते हैं आप overlapping values। of fx, ठीक है। if at different x we get the same value of y, it is many one function। it is 1-1 when it does not repeat its value, कभी भी रिपीट नहीं करता। जैसे कि आपका e raised power x plus e raised power minus x many one फंक्शन हो जाएगा क्योंकि रिपीट करेगा वैल्यू, 1-1 पे सेम है, या आप डिफ्रेंशिएट करके ग्राफिकली यहाँ पे अप्रोच ज़्यादा यूज़ होता है। ये फंक्शन हमारा 1-1 होता है बिकॉज कभी भी रिपीट नहीं करेगा ये। इसका डिफ्रेंशिएशन देखिए पॉजिटिव है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो दिस विल नेवर रिपीट। इंक्रीजिंग है तो कभी रिपीट नहीं। स्ट्रिक्ट फंक्शंस होते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हमेशा मेनी 1 आएंगे, सॉरी 1-1 आएंगे। सो यहाँ पे बच्चों वी कैन टेक फ्यू एग्जाम्पल। सो रिपीटिंग ओवरलैपिंग वैल्यूज़ को चेक करना होता है 1 मेनी 1 में। अगर रिपीटिंग वैल्यू है तो मेनी 1 हो जाएगा, नहीं है तो 1-1 हो जाएगा, रिपीटिंग नहीं है। मतलब इफ वाई टेक्स डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर डिफरेंट एक्स सो इट इज़ 1-1 देन, ठीक है। स्पेशली एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर करके क्वेश्चन आता है रैशनल फंक्शन। रैशनल मतलब रेशियो ऑफ टू पॉलीनोमियल, लीनियर बाय लीनियर, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। ऐसे फंक्शन में आप इमीडिएटली आंसर बता सकते हो। ये अमेजिंग टेक्निक बता रहा हूँ मैं और ये हमेशा ट्रू होगा। मैं बता देता हूँ आपको कि एवरी लीनियर लीनियर 1 बाई लीनियर, लीनियर अपॉन लीनियर स्पेशली, ठीक है, 1 बाई लीनियर functions are 1-1 फंक्शन। ये हम इजीली ग्राफिकली भी प्रूव कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो फंक्शंस होते हैं ना, ये आपके रेक्टेंगुलर हाइपरबोलास होते हैं और आप, मैं बता रहा हूँ तो उसमें ये आप कर सकते हो थोड़ा वर्क, ठीक है। एवरी व्हेनेवर क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व्स, मतलब इसमें विद नो फैक्टर कॉमन, आप डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ क्वाड्रेटिक और 1 बाई क्वाड्रेटिक, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाई लीनियर, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक, इस तरह के जितने भी हैं, Q स्टैंड्स फॉर क्वाड्रेटिक, L स्टैंड्स फॉर लीनियर, आर मेनी 1 फंक्शंस। ऑलवेज आएगा। आप ग्राफिकली या डिफ्रेंशिएट करके उसका नेचर पता कर सकते हो, बट ये फैक्ट है मेनी 1 फंक्शंस। अभी अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं ग्राफ से बताऊंगा आपको कि कैसे हम इस बात को कंफर्म कर सकते हैं, राइट बच्चों। तो ये बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है, आप इसको यूज़ कीजिए क्वेश्चन में डायरेक्टली, सो आप टाइम सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, assuming the codomain of f to be r, codomain of the function f to be r, check whether this function, given function fx equal to x minus 1 x minus pi upon x minus c is surjective means on to है या नहीं, इंजेक्टिव मीन्स 1-1 है या नहीं, बाइजेक्टिव यानी दोनों है या नहीं, ये चेक करना है हमें। सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव। देख सकते हो आप कि ये फंक्शन का जो अभी वैसे मैंने बोला था एक चीज़ की
क्वाड्रेटिक बाइलीनियर फॉर्म का है ये, तो ये कभी भी मेनी वन ही आएगा, वन वन नहीं आएगा। तो इसका तो आंसर मैं सीधा नो कह सकता हूँ। लेकिन आप बोलोगे सर क्यों, मतलब ग्राफ से देखो जरा, थोड़ा सा मैं ग्राफ आपको बताना चाहता हूँ इस फंक्शन का। ग्राफ बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता ऐसे फंक्शंस का। देखिए इसमें हमें थोड़ा सा रूट और एसिम्टोट का ख्याल रखना होता है डिनोमिनेटर के। इफ़ यू टेक वन ले लेते हैं यहाँ पे, इसका रूट है, e is an asymptote, x equal to e, and then x equal to pi, all right, is a root. So if we observe the graph from the first root to the asymptote and asymptote to the second root, beyond that क्या हो रहा है उससे ज़्यादा उससे फर्क उसके बिना भी हम देख सकते हैं कि रेंज इसका क्या आने वाला है। देखते हैं। सो एसिम्टोट, पहले तो साइन स्कीम बना लीजिए। साइन स्कीम जो है, साइन इसका क्या है देखिए, अराउंड द वेरियस नंबर्स 1 e पाई, साइन स्कीम वेवी कर्व से प्लस माइनस साइन पता लग गया। अब प्रॉपर ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे e पे इट इज़ नॉट डिफाइंड, e के राइट में इट इज़ जस्ट राइट में माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है। दिस इज e, दिस इज 1, दिस इज पाई, माइनस इन्फिनिटी से पाई पे जाएगा, पाई इज अ रूट, एंड पाई के बाद ये पॉजिटिव है। एंड व्हेन एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एज द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज हायर दैन द डिनोमिनेटर, तो ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा ऐसे। ठीक है बच्चों। और इनफैक्ट आप अगर ये ना भी देखो ये वाला पार्ट, हम सिर्फ e के लेफ्ट में देखते हैं तो प्लस है, बट इन्फिनिटी प्लस 1 इज अ रूट, इतने दूर से ही कंफर्म हो गया। इनफैक्ट अगर देखा जाए, मैं इस पार्ट को इग्नोर भी करूं तो देखिए कि यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से पाई तक और 1 टू इन्फिनिटी। What is the range? Range is basically the impression of the graph on y axis. तो y axis पे जो भी इसका impression आ रहा है, ग्राफ पूरा कवर कर रहा है y axis। सो ऑन टू मतलब ये पूरा छा गया है उस पर, मतलब ये ऑन टू फंक्शन है। इसका मतलब ये जो है सर्जेक्टिव फंक्शन येस आएगा, बिकॉज इसका रेंज आ रहा है। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ, एक बड़ा अच्छा इन्फॉर्मेशन है कि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूट्स आप निकाल लो, कलेक्ट कर लो, कोई भी किसी भी साइड का एग्जैक्टली वन रूट अगर दूसरे साइड के, साइड मतलब मैं रेशियो साइन की बात कर रहा हूँ, रेशियो साइन का दो साइड है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, किसी भी साइड का एग्जैक्टली वन रूट, इफ दैट फॉल्स बिटवीन द रूट्स ऑफ अदर साइड, देन डेफिनेटली रेंज वुड बी आर। ये फैक्ट है, वो ग्राफिकली आप इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है। वैसे इसे ग्राफ अगर पूरा बनाना चाहें तो ये 1 के लेफ्ट में फिर से आपका जो है माइनस इन्फिनिटी, मतलब व्हेन एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी ना, तो ये जो ग्राफ है ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ आएगा। ऑलराइट। सो यहाँ पे ऐसा कुछ सीन है और इसका रेंज आ रहा है। ठीक है बच्चों, क्योंकि ई आ रहा है 1 और पाई के बीच, तो देखते ही आप बता सकते हो रेंज आ। सो ये सर्जेक्टिव है येस, इंजेक्टिव है नो, सो बाइजेक्टिव भी नो होगा, बिकॉज बाइजेक्टिव कहते हैं ओनली व्हेन द फंक्शन is both 1 and 2, it is fail in this test. okay, so यहाँ पे ये 1 1 नहीं है, on 2 है, बट बाइजेक्टिव नहीं बोलेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो एक बार हम बैक जाते हैं कि हमने शुरू में देखिए बड़ी सारी चीज़ें लिखी थी, रेंज ऑफ फंक्शन ये हमने अभी देखा, कुछ एग्जाम्पल लिए क्लासिफिकेशन में 1 on 2। अब हम कुछ पार्ट इस तरह कवर करने वाले हैं, इवन ऑड, सिमेट्री ऑफ ग्राफ, पीरियोडिसिटी। इसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं। क्रिस्प में शॉर्ट में मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा चीज़ें बता पाऊँ मैं। देखिए मैंने यहाँ कुछ 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स फॉर ऑल एक्स, एफ ऑफ माइनस एफ एक्स। डेफिनेटली आप इनमें से कई सारे जो ग्राफिकल फंक्शनल आइडेंटिटीज़ जो लिख रहा हूँ मैं, फॉर ऑल एक्स ए ट्रू है ऐसा मान के चल रहे हैं फंक्शन के लिए, तो इनको आप पहचानते होगे। ऑलराइट। और यहाँ कुछ और भी हैं 6 7 8 9 पॉइंट्स में, और वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शनल आइडेंटिटीज़ आई हैव मेंशन। आपको 1 बाय 1 देखना है, आप भी सोचो और मैं बताता हूँ कि इसमें क्या किस तरह की, मतलब इसको हम ग्राफिकली कैसे एनालाइज कर सकते हैं, क्या पता लगता है ऐसे इक्वेशन को देख के कि व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ इट विल शो, व्हाट विल बी द सिमेट्री ऑफ द ग्राफ। सो ऐसे क्वेश्चन आते हैं फिर इस पे सिमेट्री पे। सो फॉर ऑल का सिंबल है जो इन्वर्टेड ए लग रहा है आपको। सो एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ एक्स, ये डेफिनेशन है बेसिकली इवन फंक्शन का, इवन फंक्शन, एंड ग्राफ इज
सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस के दोनों तरफ एक जैसा ग्राफ होगा. सो सिमेट्रिसिटी अबाउट अ लाइन का बेसिकली मीनिंग होता है कि अगर आप ग्राफ को फ्लिप करें अबाउट दैट लाइन, यू विल अगेन गेट द सेम ग्राफ. मतलब वो पुराने ग्राफ पे ओवरलैप कर जाएगा, लेफ्ट पोर्शन राइट पे चला जाएगा, राइट पोर्शन लेफ्ट पे आ जाएगा. इवन फंक्शन है और यहाँ पे डेफिनेटली ऑड फंक्शन का डेफिनेशन है ये. ठीक है, सिमेट्रिकल अबाउट ऑड इज इन, और इन अपोजिट क्वाड्रेंट कहते हैं. ठीक है बच्चों. नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, ये एक जनरल सिमेट्री की बात की है. इवन ऑड तो स्पेशली 1-2 केस में कहते हैं, ये तो इवन ऑड के करस्पॉन्डिंग हो गया. ठीक है, ये जो कुछ मैंने लिखे हैं ये जनरल सिमेट्री को बता रहा है. ए से लेफ्ट में जाओ, एक्स, ए इज अ फिक्स नंबर. ठीक है, जहाँ भी ए लिखा है, एक्स वेरिएबल है. फॉर ऑल एक्स ए ट्रू है. एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल एफ ऑफ ए प्लस एक्स. जस्ट लाइक कि कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स इज सेम एज कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स. तो एक्स इक्वल टू पाई के अबाउट सिमेट्रिकल होता है. आप ग्राफ बना के देख सकते हैं कॉस एक्स का, एक्स इक्वल टू पाई लाइन. यहाँ पे ए प्लस और ए माइनस में सेम है. जैसे 0 प्लस और 0 माइनस में सेम था 1 के लिए, तो y इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्रिकल. यहाँ पे सॉरी एक्स इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल था. यहाँ पे सिमेट्रिकल अबाउट x इक्वल टू a लाइन. ऑलराइट बच्चों. सो नेक्स्ट इज f ऑफ a माइनस एक्स इज माइनस ऑफ f ऑफ a प्लस एक्स होगा. सॉरी यहाँ पे a प्लस एक्स है. हाँ ठीक है. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि a माइनस मतलब a के लेफ्ट में जाओ, x डिस्टेंस वेरिएबल डिस्टेंस है हाउएवर x, लेकिन सेम x डिस्टेंस आप राइट में जाओ एट सम इंस्टेंस, आप a माइनस एक्स और a प्लस एक्स को देखिए, दोनों की वैल्यूज न्यूमेरिकली इक्वल है बट अपोजिट इन साइन है. इसका मतलब क्या है कि ग्राफ कुछ इस तरह का होगा. a है जैसे a के आप राइट में जा रहे हो, लेफ्ट में जा रहे हो, तो जितना न्यूमेरिकली इक्वल, ये a,0 पॉइंट है. ऐसे अगर इधर गए तो इधर आ जाएगा. तो ग्राफ कुछ ऐसे और ऐसे. तो यहाँ पे बेसिकली होना ये है, ग्राफ विल बी सिमेट्रिकल अबाउट द पॉइंट a,0. लाइक हेयर इट वाज सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन 0, a को 0 रख के. फर्स्ट एंड सेकेंड आर बेसिकली स्पेशल केसेस ऑफ थर्ड एंड फोर्थ. तो यहाँ पे हम बोलेंगे सिमेट्रिकल अबाउट द पॉइंट a,0. ऐसे है. थर्ड केस में बेसिकली ये कुछ इस तरह का था, सम लाइन x इक्वल टू a. इसके अबाउट सिमेट्री कुछ ऐसे करके रफली ऐसे. थोड़ा सा इसको और बेटर कर सकते हैं. रुकिए, ये लाइन ना, राइट. सो बच्चों इसको हम कुछ इस तरह का सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x इक्वल टू a. ये केस नंबर 3 के करस्पॉन्डिंग बता रहा हूँ. ठीक है. केस नंबर 5 है हमारा, दिस सिमिलर टू केस नंबर 3. सिचुएशन नंबर 3, बस आप सोचो कि 0 प्लस एक्स और 2a माइनस, एक 0 है एक 2a है, ऐसे समझिए आप. एक 0 है और एक हमारे पास 2a है, x इक्वल टू 2a. आप 0 प्लस एक्स ले रहे हो और 2a माइनस एक्स, सेम हाइट आ रहा है. फिर जितना आप इधर जा रहे हैं उतना लेफ्ट, 2a से लेफ्ट में आ रहे हैं. तो एक तरह से 0 पे, और जैसे 0 पे कुछ पॉइंट वैल्यू है, 2a पे कुछ वैल्यू है, तो कुछ इस तरह का बनेगा. तो मान के चलो कि ये ग्राफ जो है सिमेट्रिकल अबाउट क्या बनने वाला है, द लाइन इन द मिडल मोस्ट x इक्वल टू a. यू कैन हाउएवर पुट रिप्लेस x बाई, क्योंकि आइडेंटिटीज हैं, यू कैन रिप्लेस x बाई एनीथिंग, x बाई माइनस एक्स, x बाई 2x, x बाई अगर आप x की जगह a प्लस एक्स डाल दीजिए तो ये इमीडिएटली यू विल गेट टू नो कि ये क्या बन गया. बोथ द साइड्स यू गेट टू नो कि ये आ जाएगा ऐसा कुछ, एफ ऑफ a प्लस एक्स इज नथिंग बट केस नंबर 3. सो यहाँ बोलेंगे सिमेट्रिकल अबाउट x इक्वल टू a लाइन अगेन. ऑलराइट, कमिंग टू द, ये 6, 7, 8, 9 जो हैं, 6 आपको देखते ही लग गया होगा किसकी हम बात कर रहे हैं. ये सारे रिलेटेड हैं पीरियोडिसिटी से, पीरियोडिक फंक्शन. यहाँ पे हमने इवन ऑड फर्स्ट सेकेंड केस में देखा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में जनरल सिमेट्री की बात करी. 6, 7, 8, 9 ये सारे जो फंक्शनल रिलेशंस इस तरह के बड़े कॉमनली दिखते हैं, आते हैं, इसको आप अच्छे से पहचानो. यू शुड रिकॉग्नाइज ऑल दीज. सो दिस इज पीरियोडिक.
पीरियोडिक फंक्शन है, जनरली हम टी को पॉजिटिव लेके जाते हैं, टी इज अ फिक्स पॉजिटिव नंबर, पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी, ठीक है। यहाँ पे टी अगर मतलब मोटी लिख दो अगर टी पॉजिटिव नहीं दिया तो, पीरियोडिक विद पीरियड difference of the input, that is a minus b. If you replace x by x minus a ना, you'll get to know कि b minus a और a minus b इसका mod of that, इसका पीरियड हो जाएगा। यहाँ पे अगेन पीरियोडिक, ये कब होता है, when x f of x plus a plus f of x plus b is equal to k है, तो इसमें भी पीरियोडिक आता है, इसको हम प्रूव कर सकते हैं विद पीरियड ट्वाइस ऑफ डिफरेंस ऑफ a एंड b, ठीक है। और ये जो फोर्थ वाला है, इसमें हालांकि आप देखिए एफ ऑफ ए प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स है, मतलब ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स इक्वल टू ए लाइन, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स इक्वल टू बी लाइन, हम मान के चल रहे हैं कि मतलब ए नॉट इक्वल टू बी है, ऑलराइट। तो ए एंड बी डिफरेंट नंबर्स हैं। तो यहाँ पे इफ सम फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट टू डिफरेंट वर्टिकल लाइन्स, इट विल हैव टू बी पीरियोडिक, ये पीरियोडिक होना पड़ेगा, ये पक्का है, पीरियोडिक हो जाएगा ये विद पीरियड। सो यू शुड हैव दीज इंफॉर्मेशंस, twice of mod of again a minus b, double of the distance between the two mirrors, ठीक है। तो ये आप जैसे कि आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, शायद कभी एक्सपीरियंस किया हो, सैलून में कभी आप जाओ तो उसमें अगर पैडल दोनों साइड वॉल पे अगर मिरर लगाए तो आपके इन्फाइनाइट इमेजेस फिर बनने लग जाते हैं, ठीक है ना। और पीरियोडिक सा एक रिपीटेड इमेजेस आपको डिस्टेंसेस में मिलते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे डबल ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू मिरर्स और द लाइन्स ऑफ सिमेट्री, इस पे आता है। तो इसको प्रूव कर सकते हैं आसानी से मैथमेटिकली, आप x को रिप्लेसमेंट मेथड से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर, ये जो सिचुएशन नंबर 8 है, इसे कॉरस्पॉन्डिंग मैंने एक क्वेश्चन भी लिया है, तो वहाँ से यूल गेट टू नो कि कैसे 8 और 9 में हम वी कैन प्रूव इट। तो आई हैव गिवन द इंफॉर्मेशन। कमिंग टू द क्वेश्चंस, अच्छा उससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 है ये, 7 ये है, कुछ इवन ऑड की बात कर रहे हैं, 6 में हम पीरियोडिसिटी की बात कर रहे हैं, 7 में ये जैसे मैं अभी जो बात कर रहा था, देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है ये, इसमें देखो पीरियोडिसिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमेशा 2 एफ की बात होती है। 6 में 7 में सब में एफ 2 एफ दिख रहे हैं लेफ्ट राइट में ना, 2 एफ्स आर इन्वॉल्व। बट जैसे क्वेश्चन नंबर 8 पे मैं डायरेक्टली आ रहा हूँ, 6 7 बाद में करेंगे बच्चों। लेट द फंक्शन एफ बी सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल एफ एक्स। यहाँ पे 3 एफ्स हैं बट दे आर क्वाइट, आई मीन देखिए इनपुट में 1 का डिफरेंस चल रहा है और 2 का, तो इसमें ना हम वी कैन मैनेज टू नो अबाउट द फंक्शन की फंक्शन में कुछ इस तरह का नेचर है ही नहीं पीरियोडिसिटी टाइप का। हाउएवर हियर देयर आर 3 एफ्स इन्वॉल्व इन द क्वेश्चन। बट देखिए यहाँ पे f1 की वैल्यू 5 है और यहाँ f of 1 plus 6 आर फ्रॉम 1 to 100, यानी आर को 1 डालोगे तो f7 बनेगा, आर को 2 डालने पे f13 बनेगा। 1 पे 5 वैल्यू है, अब 7 13, ये 1 7 13, ऐसा लग रहा है कि पीरियोडिक फंक्शन हो तभी इसको हम फाइंड कर पाएंगे। सो पीरियड इसका कुछ 6 या 6 के मल्टीपल पे आना चाहिए, या 3 6 का हो सकता है कोई डिवाइजर पे आ जाए, तो विल चेक इट। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ऑलराइट। सो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ओके कुछ ऐसा तरीका होता है जनरली, ऐसे कई सारे क्वेश्चन में वी यूज़ इट, आप भी देखो इसको, वी ट्राई टू मेक ना डिफरेंट, जो भी एफ दिख रहा है उसको पहले बना लो, रिप्लेसमेंट मेथड एक्स बाई, बेटर है हम सीधा x प्लस 1 कर देते, सो दैट कि यहाँ पे x बन जाएगा और यहाँ पे x प्लस 2 और यहाँ पे f ऑफ x प्लस 1 बन जाएगा। तो हमें क्या मिलता है, f ऑफ x प्लस 2 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस 1 आ गया। ऑलराइट बच्चों, सो यहाँ पे इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 बोलता हूँ। यहाँ भी 3 एफ है, ऊपर भी 3 एफ है, इन दोनों को देखते हैं मैनेज करके कि इन दोनों से क्या रिलेशन मिलते हैं हमें। इफ़ यू ऐड 1 and 2 you'll get to know कि एफ एक्स कट गया, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 कट जाएगा और एफ ऑफ एक्स प्लस 2 देख रहे हैं, इफ यू ऐड द 2, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 0 आ रहा है। तो अब देखिए ये उस तरह का ही चीज़ आ गया ना, जैसे मैं आई एम शोइंग यू, ये देखो एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस बी इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है। सो के कॉन्स्टेंट, यहाँ पे के हमने 0 लिया, देखिए 0 आ रहा है मतलब। अब यहाँ पे कैसे प्रूव होगा कि ये पीरियोडिक है, यहाँ पे प्लस साइन है। सो इफ अगेन रिप्लेस,
इसमें ये इटरेशन मतलब इस तरह का चलता रहता है, रिप्लेसिंग एक्स बाई, सो दैट कि इधर का उधर हो जाए, मतलब राइट वाला जो इनपुट है वो लेफ्ट में ले लें। एक्स बाई एक्स माइनस कर सकते हो या प्लस भी कर सकते हो, एक्स माइनस या एक्स प्लस कर देते हैं कि लेफ्ट राइट मतलब एक्स प्लस 3 कर दो ना, तो राइट में आपको ये चीज़ बन जाएगी। तो हमें मिल रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0. So from these two subtracting we get what? F of x plus 5 is equal to f of x minus 1. और यहाँ पे भी फिर रिप्लेसिंग x बाई एक्स प्लस 1 कर दो, ज़्यादा ये कर सकते हैं, f x प्लस 6 इज इक्वल टू एफ एक्स आ गया। ऑलराइट, इसका मतलब पीरियड कन्फर्म है इज इक्वल टू 6। और नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे अगर मैं अगर बात करूँ सिग्मा एफ ऑफ 1 प्लस 6 आर फ्रॉम 1 to 100, सो ये हमेशा एफ ऑफ 1 ही रह जाएगा, बिकॉज इट इज़ फंक्शन इज पीरियोडिक विद पीरियड 6, तो 6 ऐड करने पे सेम वैल्यू, f1 की वैल्यू ऑलरेडी वी हैव 5 into 100 टाइम्स, आंसर मस्ट बी 500 टू दिस क्वेश्चन। ऑलराइट बच्चों, नाउ कमिंग टू, अच्छा सम फ्यू अर्लियर क्वेश्चंस वेयर देयर, फाइंड आउट फॉर व्हाट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n द नंबर 3 पाई इज अ पीरियड ऑफ द फंक्शन दिस। सो पीरियड में हम बेसिकली में क्या है, हमेशा बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स प्लस 3 पाई इज, दे आर नॉट सेइंग अबाउट द फंडामेंटल पीरियड, पीरियड है तो हम क्या करेंगे, बस 3 पाई ऐड कर देते हैं। सो मस्ट बी इक्वल टू 5 बाई एन एक्स है, दिस मस्ट बी इक्वल टू एफ एक्स एंड विच इज नथिंग बट कॉज एन एक्स इंटू साइन ऑफ 5 बाई एन एक्स। ऑलराइट, अब हमें ये देखना है, सॉरी यहाँ पे मुझे को ये नहीं, साइन इसमें क्या रहा है बच्चों, देखते हैं, या यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए साइन ऑफ 5 बाई एन एक्स प्लस 3 पाई। ऑलराइट, सो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, या कॉज ऑफ एन एक्स, एकदम सिंपल बेसिक से स्टार्ट किया, 3n पाई एंड n इज इंटीजर। ऑलराइट, सो गुड प्रॉब्लम, देखिए साइन ऑफ 5x बाई एन प्लस 15 बाई एन पाई इज इक्वल टू आ रहा है कॉज एन एक्स इंटू साइन 5 बाई एन एक्स। आप ये देख रहे हो, सो यहाँ पे कॉस एन एक्स प्लस 3n पाई इस 2n पाई को वी कैन रिमूव, सो कॉस 3n पाई और n पाई कर लें, प्लस थीटा होता है -1 रेज पावर n कॉस थीटा, व्हेन n इज इवन इट इज कॉस थीटा, ऑन इज ऑड माइनस कॉस। और यहाँ पे देखा जाए तो ये मैं सेम लिखूँगा, और यहाँ पे कॉस एन एक्स और ये ऐसे लिखूँगा, ये कट जाएगा, तो क्योंकि आइडेंटिटी है शुड बी ट्रू फॉर ऑल एक्स ना, पीरियोडिक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि वी आर गेटिंग साइन ऑफ 15 बाई एन पाई प्लस साइन 5x बाई एन एज -1 रेज पावर माइनस एन, -1 रेज पावर माइनस एन इज सेम एज माइनस रेज पावर एन साइन ऑफ थीटा 5x बाई एन। एक तरह से यहाँ पे सेम 5x बाई एन आ रहा है, यहाँ भी सेम 5x बाई एन है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ये जो है फिर से ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई ऐसा बनना चाहिए। सो 15 बाई एन मस्ट बी ऑड, देन ओनली ये जो है ऑड, साइन ऑफ ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई प्लस थीटा इज साइन पाई प्लस थीटा, साइन 3 पाई प्लस थीटा, इस तरह की बात है। इसका मतलब n जो है वो डेफिनेटली क्या है, 15 के फैक्टर्स ऑफ n, फैक्टर्स ऑफ 15, तो इसमें आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ले सकते हैं, हालांकि यहाँ पे +-1 +-3 +-5 और +-15, सो दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, 8 पॉसिबल वैल्यूज टोटल। ठीक है, ये सारे वैल्यूज मैंने लिख दी, तो इजीली आपको लेना है ना, ट्राई टू मैनेज द थिंग्स इन ईजियर मैनर, बेसिक से करना है, डेफिनेशन यूज़ करना है। यहाँ पे एक फंक्शन लुकिंग कॉम्प्लिकेटेड, फ्रैक्शन पार्ट, अंडर रूट, लॉग, मॉड, एवरीथिंग इज देयर, और इसमें पूछा जा रहा है कि इज दिस फंक्शन ऑड और इवन, यू हैव टू चेक इट। सो विल हैव टू फर्स्ट सिंप्लीफाई इट, e raised power minus of under root of mod of ln of fraction part of x minus fraction part of x under root of minus fraction part of x whole raised power under root of,
सो लुक्स कॉम्प्लिकेटेड. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो डोमेन है वो हम देखेंगे कि मॉड तो लगा है, बट फ्रैक्शन पार्ट ऑफ लॉग इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव इनपुट्स ना. सो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स तो 0 से 1 में होता है. सो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स शुड नॉट बी 0. मतलब ये है कि एक्स शुड नॉट बी इंटीजर. ये तो पक्का है, एक्स इंटीजर नहीं होना चाहिए. वैसे इवन ऑड चेक करने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स को एफ ऑफ एक्स से कंपेयर करते हैं. बट इसमें जो क्वेश्चन है इसमें पहले हमें फंक्शन जो एफ एक्स है उसको ही पहले सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या सिचुएशन बन रहा है. हो सकता है ये सिंप्लीफाई हो जाए और फिर हम इजीली एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल पाएँ. सो एक्स शुड नॉट बी इंटीजर. हाँ, ये शुड नॉट बी इंटीजर लिखना चाहिए मुझे. और यहाँ पे देखिए कि बिकॉज व्हेन एक्स इज इंटीजर फ्रैक्शन पार्ट 0 होता है, अदरवाइज डोमेन में कोई इशू नहीं लग रहा. तो यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ. जैसे e का पावर माइनस ऑफ, देखिए e का पावर माइनस ऑफ वेर एवर इट एग्जिस्ट. ओके, सो इसका मतलब ये है कि x डज नॉट बिलोंग टू i, तभी ये एग्जिस्ट कर रहा है. एंड एल्स वेयर का मतलब है कि यहाँ पे व्हेन x बिलोंग्स टू i इट इज फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x. द सेकेंड ट्रैक, सेकेंड पाथ, व्हेन x डज नॉट बिलोंग टू i, तो ये फर्स्ट जो ट्रैक लिखा हुआ है उसको फॉलो कर रहा है फंक्शन. तो फर्स्ट ट्रैक में आप देखो कि माइनस ऑफ एल एन ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट. सो रेसिप्रोकल 1 बाई लॉग का एक फॉर्मूला होता है, उसको आप सीधे ले सकते हैं अंडर रूट ऑफ एल एन ऑफ, सॉरी लॉग ऑफ, क्या होता है. अच्छा, एक चीज़ और है कि बच्चों लॉग फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स ना, log of ln of fraction part of x है. fraction part of x varies from 0 to 1. So log of fraction part of x is a negative quantity. So mod of it is basically what? Minus of ln of fraction part of x. Because that is a negative quantity, mod will be opened with minus sign ahead. So यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं. और रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी जो लॉग की होती है उसके अकॉर्डिंग मैं कहना चाह रहा था कि यहाँ पे माइनस हो, ये बेस और इंडेक्स इंटरचेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे log ऑफ e टू द बेस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x. ऑलराइट, बट ये स्टिल रूट के अंदर है, थोड़ा सा वर्क करना पड़ सकता है इसमें. फॉर x डज नॉट बिलोंग टू i, देखिए हम क्या करने वाले हैं, y जो है हमारा ये है और ये इसको हम लिख सकते हैं. थिंग्स आर क्लोज बट ये तो ठीक है, इसको मैं ऐसे रख रहा हूँ. बट फ्रैक्शन पार्ट जब बेस में आता ना, तो यू कैन राइट इट एज अंडर रूट ऑफ, ओके इसको रूट से फ्री करते हैं. इसको रूट से फ्री करते हैं. इट्स अ गुड प्रॉब्लम. आई हैव टेकन दिस फॉर यू टू सॉल्व, यू टू सी, ऑब्जर्व. यहाँ पे इसको माइनस ऑफ लॉग ई टू द बेस फ्रैक्शन पार्ट लिख सकते हो. एंड अपॉन रूट में वापस, रूट वॉज इन डिनोमिनेटर ना, ऊपर नीचे फ्री होगा ना यहाँ पे. ओके, माइनस, राइट. सो यहाँ पे लॉग ई टू द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स ऐसे लिख देते हैं. एक मिनट बच्चों, जरा सा ना मैं जस्ट टेकिंग दिस, इसको स्टार्ट से ना थोड़ा सा बेटर वे में लिखने की कोशिश करता हूँ. जस्ट लुक एट दिस. सो यहाँ पे वी हैड 1 अपॉन रूट. सो रूट को मैं नीचे फ्री कर रहा हूँ, लॉग फ्रैक्शन पार्ट टू द बेस ई है, मॉड के साथ है, और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट. सो 1 बाई रूट टी को वी कैन राइट रूट टी बाई टी. 1 बाई रूट है ना, 1 बाई रूट. ओके, हम लिख सकते हैं रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके मॉड लॉग फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स बेस ई. ऑलराइट, तो अभी मैं इसको क्या करूँगा नाउ, द थिंग इज कि ये जो डिनोमिनेटर में है लिखा हुआ 1 अपॉन में, तो ये एक तो मॉड हटेगा माइनस साइन बिकॉज ड्यू टू दिस, एंड ये आ गया माइनस ऑफ लॉग ई टू द बेस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, और साथ में रूट आ रहा है
माइनस ही ले लेते हैं, log फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x बेस e. अब दे अकॉर्डिंग टू अ फॉर्मूला वी नो अनदर फॉर्मूला, a रेज पावर log ऑफ b टू द बेस है, ये b हो जाता है. ऑलराइट, सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा, ये तो सेम है. अच्छा यहाँ पे भी मॉड था ना बच्चों, यहाँ माइनस ही आएगा, माइनस आएगा इनसाइड. सो माइनस ln फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x बिकॉज द क्वांटिटी इनसाइड मॉड वाज नेगेटिव, माइनस अब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ log ऑफ e टू द बेस फ्रैक्शन पार्ट, ये हो जाएगा e, और माइनस साइन है बाहर. तो मैं इसकी पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस पार्ट की बात कर रहा हूँ. सो यहाँ पे मैं, हाँ ठीक है, ऑलराइट. नाउ कमिंग टू, तो ये आ गया माइनस लॉग, ओके गेट कैंसिल, तो ये ज़ीरो आ जा रहा है, राइट. सो y आ रहा है ज़ीरो आफ्टर सब सिंप्लीफिकेशन फॉर, सो फाइनली हमारे पास fx है ज़ीरो, ज़ीरो वेन एवर x डज नॉट बिलोंग टू i, so good problem. And when x belongs to i, it is fraction part of it. But when x belongs to i, fraction part is 0 itself. So finally, the function is 0 for all x. For all x belongs to r. Alright. So function is in the both category. It is odd as well as even. So even भी odd भी. This is the only function which is simultaneously both even and odd. इसमें दोनों ही correct है. ठीक है बच्चों? Because it is satisfying both the definitions. तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा. तो ये क्वेश्चन था. तो वी डिड फ्यू प्रॉब्लम्स है. नाउ कमिंग टू द फंक्शनल इक्वेशन, तो आपको मैं एक बार फिर से शो करता हूँ कि यहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ें कवर करी हैं आज के क्लास में. इवन आउट फंक्शंस की कुछ बातें करी हैं, सिमेट्री ऑफ ग्राफ की बात करी, जो उसमें मैंने फंक्शन पीरियोडिक फंक्शंस की बात करी. फंक्शनल इक्वेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पे थोड़ा देखते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जानने के लिए फॉर दिस एग्ज़ाम एंड जेई ऑल्सो इन फैक्ट. सो आप देख पा रहे होंगे इस चैप्टर को कैसे हम शॉर्ट में और कैसे अच्छे से पूरा चैप्टर कम ड्यूरेशन में रिवाइज कर सकते हैं इन अ बेस्ट वे, कैसे है ना. सो यहाँ पे मेन जो सारे फीचर्स मैंने लिखे और इम्पॉर्टेंट अच्छे लेवल पे, सॉल्यूशंस ऑफ वेल नोन फंक्शनल इक्वेशंस. लेट हैव बी नॉन जीरो कॉन्टिन्यूस फंक्शन satisfying for all real x and y. यहाँ पे वैसे नॉन ज़ीरो बताया क्योंकि ज़ीरो जो है ऑब्वियस या ट्रिवियल सॉल्यूशन है. एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो इन एवरी केस, वेन एवर एफ एक्स इज ज़ीरो, एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो इज सेटिस्फाइंग ऑल द डिफरेंट क्वेश्चंस. दीज आर 7 डिफरेंट क्वेश्चन इन फैक्ट, डिफरेंट केसेज हैं. एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो सब में ट्रू होगा, तो वो ऑब्वियस ट्रिवियल सॉल्यूशन है. नॉन ज़ीरो सॉल्यूशंस ढूंढने की बात हो रही है यहाँ पे. So we'll try to find non-zero solutions for this. If this is true for all real numbers x and y, first case में बात कर रहा हूँ, yeah definitely for every two input function is same. इसका मतलब function is a constant function. fx is constant. ठीक है, constant function. ठीक है, इसको थोड़ा ऑल राइट, कॉन्स्टेंट. ठीक है, जैसे y को आप जीरो डाल दो तो एफ एक्स इक्वल f0 विल हैव सम कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट. यहाँ पे सेकेंड केस में यू नो है ना, ये बड़े कॉमन फंक्शनल इक्वेशंस हैं, कॉचीज फंक्शनल इक्वेशन भी कहते हैं. सो इन दिस केस जो है फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस गिवन, एफ एक्स जो है हमारा लीनियर फंक्शन होता है, लीनियर विथ नॉन जीरो विथ जीरो कॉन्स्टेंट, मतलब के एक्स टाइप. और ऑब्वियस सोल्यूशन है एफ एक्स इक्वल टू जीरो तो है ही है. के की वैल्यू डिपेंड करती है कि सम अदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज गिवन. के वैसे एफ डैश जीरो के इक्वल है, जनरली एफ डैश जीरो गिवन होता है. जैसे एफ डैश जीरो अगर 2 दिया है तो एफ एक्स हमारा 2x हो जाएगा. यहाँ पे यू नो व्हाट फंक्शन विल वर्क. इफ़ यू टेक लॉग इन द थर्ड केस ना, तो वो सेकेंड केस वाला फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. लॉग ऑफ एफ एक्स को अगर जी एक्स ले लो तो जी ऑफ एक्स प्लस वाई करो जी एक्स प्लस जी वाई, उस तरह से देख सकते हैं आप. फिर जी एक्स का मतलब के एक्स है, यानी एफ एक्स आपका ई का पावर के एक्स फॉर्म में है, या ए का पावर एक्स लिख सकते हैं आप. इस तरह का सोल्यूशन आता है. ये लॉग एफ ऑफ एक्स वाई को एफ एक्स इन प्लस एफ वाई, इसको वी कैन ईजिली प्रूव. हाउएवर आई एम नॉट गिविंग प्रूफ फॉर दीज रिजल्ट्स, बट ये प्रूफ ना वैसे तो डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर है उसमें भी करा सकते हैं, या फंक्शन चैप्टर में भी कराया जाता है. तो फंक्शन चैप्टर में इस पे क्वेश्चन कुछ मिल जाएंगे आपको,
फंक्शनल इक्वेशन बहुत कॉमनली आता है. सो यहाँ पे यू शुड रिमेंबर दीज रिजल्ट्स. दिस हैपन्स विद द लॉगरिथमिक फंक्शन k टाइम्स log x. इन फैक्ट k टाइम्स ln x, मतलब 2 ln x 5 ln x सारे वर्क कर जाएंगे यहाँ पे. तो ये सारे आप याद रखिए, वेरी यूजफुल रिजल्ट्स. इस केस में जो लास्ट वाला है इसमें पावर फंक्शन आता है x रेज टू द पावर n टाइप. ठीक है, x रेज पावर n टाइप. सो यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन आप जनरल मतलब यहाँ पे ना डिफरेंशिएबिलिटी का जो फॉर्मूला है उसके बेस पे भी इसको प्रूव किया जाता है जनरली, और भी तरीके हैं, बट अभी मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा. ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शनल इक्वेशन इनके रिजल्ट्स याद रखने बच्चों. ठीक है, ये 4 आ गए ना, 2 3 4 5, ये मेन कॉचीज इक्वेशन कहलाता है. और ये जो 6th वन है एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स इक्वल टू 1 है, एक्स नॉट इक्वल टू 0 लिया गया यहाँ पे. और 4th वाले में एक्स वाई बिलोंग्स टू आर प्लस लिया गया था बिकॉज लॉगरिथमिक फंक्शन के डोमेन के हिसाब से. सो वेयर एफ इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n. क्वेश्चन नंबर सिचुएशन नंबर 6 की बात करो. सो इट्स लाइक कि ये ना अगर एक से ज़्यादा टर्म है, जैसे एफ एक्स मान लो एक्स क्यूब है तब तो हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू 1 बाई एक्स का होल क्यूब 1 आ रहा है. बट मान लो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर आ जाए एफ एक्स में, तो फिर यहाँ पे भी 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर, तो प्रोडक्ट हो कभी भी 1 नहीं आएगा, एक्स का टर्म बचेगा. विल नॉट बी फ्री फ्रॉम एक्स, द प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स एंड एफ वन बाई एक्स. तो यहाँ से या फिर यू कैन अज्यूम अ पॉलिनोमियल जनरल एंड देन replace x by 1 by x, multiply fx and f1 by x, compare it with 1 for various powers of x. तो you'll get to know कि finally सारे coefficient 0 हैं except the leading coefficient. यहाँ पे फंक्शन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लस या माइनस हो सकता है x रेज पावर n टाइप. ठीक है, n डिग्री पॉलिनोमियल है तो लीडिंग कोएफिशिएंट तो रहेगा ही, तो इस टाइप का ही आएगा. एंड द 7 नंबर इज अ वेरी फेमस कॉमन फंक्शनल इक्वेशन. ये इसी का कह लो बिग ब्रदर है नंबर 6 का. इसको वी कैन हाउएवर एक्सप्रेस इट एज जब भी प्रोडक्ट और सम हो ना दो क्वांटिटीज एफ ए एंड बी, सेम दो क्वांटिटीज का, जैसे यहाँ पे लेफ्ट में प्रोडक्ट दिख रहा है, राइट में सम दिख रहा है एफ एक्स और एफ वन बाई एक्स का. तो यहाँ पे बच्चों हम ये कर सकते हैं कि ए हम कॉमन ले सकते हैं. ये एक बड़ा कॉमन तरीका होता है, सम प्रोडक्ट दोनों हो तो वी कैन राइट द सेम रिलेशन सेम इक्वेशन एज दिस बाय टेकिंग ऑल द टर्म इन द लेफ्ट एंड एडिंग 1 बोथ द साइड्स. ये आ जाएगा. और इसको अगर मैं एफ एक्स माइनस 1 को जी एक्स नाम दे दूँ, अगर एफ एक्स माइनस 1 को आई हैव टेकन एज जी एक्स, ठीक है, सॉरी ये हाँ जी एक्स नाम दे दूँ. ये कुछ इसमें यार एक सेकेंड, अगर मैं इसमें बच्चों हाँ सो ऑलराइट, इसको मैं कह रहा था कि इसको अगर मैं जी एक्स नाम दे दूँ तो यार है जी एक्स इंटू जी 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1, सेम एज नंबर 6. तो यहाँ सीधा कह सकते हैं जी एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस एक्स रेज पावर n. नाउ जी एक्स वॉज वॉट एफ एक्स माइनस 1, सो डेफिनेटली एफ एक्स आ जाएगा 1 प्लस और माइनस एक्स रेज टू द पावर n. तो ये इसमें फाइनल रिजल्ट होता है. ये आपको मैंने थोड़ा डिराइव करके बताया है. और इस तरह से पूरा डेरिवेशन के साथ इफ़ यू सी द चैप्टर ना, यू विल हैव कॉन्फिडेंस कि फ्रॉम वेयर द थिंग्स कम, तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा. सो ये बहुत कॉमन है और इम्पॉर्टेंट है. इस पर आप टेकन अ क्वेश्चन, लेट बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन सच दैट ऑलराइट एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स इक्वल एफ एक्स प्लस सेम वही लिया है पॉलिनोमियल एफ फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट 0, एफ माइनस 1 एफ माइनस 2 माइनस 31 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, फाइंड द फंक्शन एफ एक्स. ओके, तो यहाँ पे वी विल डायरेक्टली यूज दैट रिजल्ट. वी विल से कि या तो ये वाला फंक्शन है और एफ एक्स है 1 माइनस एक्स रेज पॉइंट. नाउ टेक एफ टू, एफ ऑफ माइनस 2, एफ ऑफ माइनस 2 इज माइनस 31, सो 1 प्लस माइनस 2 का पावर n, और या तो ये होगा माइनस 31 और 1 माइनस एक्स रेज मतलब सॉरी माइनस 2 होल रेज पावर n, ये होगा माइनस 31. सो यहाँ से देख सकते हैं कि नो okay, so when n is some natural number, polynomial है ना ये, n is whole number sum. तो यहाँ पे you can see कि if you take n as 1 2 3 4 रख के देखते हैं, so n की वैल्यू 5 आ रही है, बट 5 आने पे सेकेंड केस में when n is even, तब तो
सेकेंड केस में नेगेटिव आएगा, बट नो, मतलब फाइनली आप -2 का पावर n की वैल्यू निकालो ना, -2 का पावर n अगर हम देखें, फ्रॉम द फर्स्ट केस इट इज -32 and from second case it is 32. So in second case it is not possible because the value of n seems to be 5, but in that case the left hand side is not 32, it is -32. Finally from here definitely n is coming as 5, we got n as 5 and we used plus sign. So plus sign is working, plus sign is working, ये plus sign work कर रहा है यहाँ पे, माइनस साइन वर्क नहीं कर रहा. ओके, सो यहाँ पे फाइनल जो हमारा फंक्शन है इसका मतलब 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 5 है. तो दैट कि जब आप -2 डालेंगे तो यहाँ पे -31 आ जाएगा. सो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा. सो दिस इज आवर फंक्शन. सो इस तरह से वी कैन ऑब्जर्व कि एन की क्या वैल्यू है. लेट एफ बी ए फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ई रेज पावर वाई एफ एक्स प्लस ई रेज पावर एक्स fy for all xy real. If f dash 0 is 2, then find the value of find fx. फंक्शन निकालना है. This is quite similar to the Cauchy equation, this one number 2. तो इसके आसपास ना थोड़े बहुत वेरिएशन के साथ क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस जगह थोड़ा सा प्रैक्टिस करो तो इजीली कैच कर सकते हो. आप देखोगे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स प्लस एफ वाई था यहाँ पे एक्स्ट्रा. सो इफ़ यू ट्राई टू फ्री द टर्म, आई मीन वेरिएबल्स को एक साथ रखें, एक्स का टर्म एक साथ, वाई का एक साथ, एक्स प्लस वाई का एक साथ. तो इफ़ यू डिवाइड the equation by e raised to the power x plus y, what we get? f of x plus y upon. So देखिए, आप तो पहले याद रखो कि क्या क्या मेन स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन है. फंक्शनल इक्वेशन की बात करें बच्चों, इसे डिवाइड करने देखो ये आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, देखिए चेक कीजिए. और उसके बाद उसके आसपास के रिजल्ट्स जो हैं, मतलब क्वेश्चन उसके आसपास पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करके वो निकालना. देखिए अब यहाँ से क्या है, इफ़ आई कॉल इट जी एक्स, सो दिस विल बी जी वाई एंड डेफिनेटली दिस विल बी जी ऑफ एक्स. आर यू गेटिंग इट बच्चों? सो अकॉर्डिंग टू द कॉची ये जी जो है क्या हो जाएगा, मतलब कॉचीज इक्वेशन के हिसाब से जो उसका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जी हो जाएगा के एक्स. ठीक है, एक ऑब्वियस सोल्यूशन एफ एक्स इक्वल टू 0 है, बट 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा. सो इसकी ये भी कंडीशन इंपॉर्टेंट है. सो जी एक्स इज के एक्स, इट मीन्स वॉट, एफ एक्स इज के एक्स ई रेज टू द पावर एक्स. नाउ एफ डैश 0 2 दे रखा है. सो व्हाट इज एफ डैश एक्स फ्रॉम हेयर, के इंटू ई रेज टू द पावर एक्स, प्रोडक्ट रूल, के एक्स का डिफरेंशियल प्लस के एक्स डेरिवेटिव ऑफ ई रेज पावर एक्स. व्हेन यू पुट एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू आ रहा है के, ओके, 2 इक्वल टू के प्लस 0, यानी के इज 2. सो फाइनली हमारा जो आंसर है, जो फंक्शन है, वो आ रहा है 2x, ऑलराइट बच्चों, ई रेज टू द पावर एक्स. सो ये हमारा इस केस में आंसर होगा. ऐसे आसपास चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए. सो मैंने कोशिश करी है कि टाइम कम था, बट कम टाइम में आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाएँ. सो आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन. एंड एक लास्ट चीज़, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ की बात करते हैं, तो इसका ग्राफ प्लस माइनस के का, या यहाँ पे इस तरह का भी बना सकते हैं आप. इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एफ एक्स का ग्राफ नोन है, सपोज साइन एक्स नोन है, तो साइन एक्स प्लस के और माइनस के, हाउएवर डिपेंड्स ऑन के पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो इफ के इज पॉजिटिव, प्लस वाला ग्राफ जो है, सारी हर एक्स पे वैल्यूज के यूनिट बढ़ गई है, तो इन ग्राफ इज व्हाट, ग्राफ इज नथिंग बट द प्लॉटिंग ऑफ वैल्यूज. तो ये पूरा ग्राफ हम शिफ्ट करते हैं ऊपर की तरफ, शिफ्ट अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स. तो ये डिपेंडिंग अपॉन के इज पॉजिटिव तो अपवर्ड लेना है, के नेगेटिव तो डाउनवर्ड लेना है. मैं प्लस के की बात कर रहा हूँ, अकॉर्डिंगली माइनस के में, मतलब ठीक है, ऐसे कर लेंगे. फॉर वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस के, ठीक है, ऊपर नीचे अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस मूवमेंट करना है. यहाँ पे जो सेम हो जाएगा, शिफ्ट द ग्राफ और ट्रांसलेट द ग्राफ अलॉन्ग एक्स एक्सिस. ठीक है, कि आपको मतलब आई मीन सपोज एफ ऑफ एक्स प्लस 2 का ग्राफ बनाना है फ्रॉम एफ एक्स. सो वॉट एवर वैल्यू यू आर गेटिंग एट एक्स इक्वल टू 4, यू विल गेट सेम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 2 इटसेल्फ. वॉट एवर वैल्यू यू आर गेटिंग एट एक्स इक्वल टू 0, अब वो -2 पे ही मिल जाएगा. तो एक तरह से क्या है ना, पहले जो राइट की वैल्यूज थोड़ी शिफ्ट होगी लेफ्ट में, शिफ्ट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, लेफ्ट जाना है, लेफ्ट वर्ड्स
इफ k is नेगेटिव, लेफ्टवर्ड जाना है अगर k पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव की बात कर रहे थे ना हम अभी, पॉजिटिव हो तो हमें लेफ्ट में जाना है, और राइट जाना है तो ये कॉमन सेंस से कर सकते हैं आप। k नेगेटिव हम बात कर रहे हैं फॉर y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस के की बात चल रही है, ठीक है बच्चों। इसके लिए ये फॉलो करना है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, थर्ड में एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स, बेसिकली ऑल द वैल्यूज विच वेर पॉजिटिव बिकम नेगेटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज बिकम पॉजिटिव। सो बिलो एक्स एक्सिस वाला वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे। तो यहाँ पे हम कहेंगे टेक इमेज इन, तो ये बस रिवीजन के लिए इमेज इन एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे सिमिलरली यू कैन इजीली ऑब्जर्व इट, टेक इमेज इन y axis, all right. In the fifth case I have taken mod in the entire, तो इसमें क्या होगा कि where fx is positive mod will not affect, so fx above x axis no change above, no change above x axis, ठीक है। and delete original, deleting original below portion but taking its image in x axis। तो आपको क्या करना है, जहां नेगेटिव था उसको पॉजिटिव बनाने के लिए ओरिजिनल नेगेटिव रिमूव करते हुए you'll have to take the image of that, like suppose y is equal to x square minus 7x plus 10 है, इसका ग्राफ is like this parabola। now you want to plot this, तो इसमें क्या करेंगे कि जो ऊपर वाला सेम रहेगा ग्राफ, नीचे वाले पोर्शन को ओरिजिनल नीचे वाला रिमूव करते हुए इसका इमेज लेंगे और फिर ऐसे कुछ इस तरह से करते हैं। यू कैन रिकॉल इट, यूजफुल ट्रांसफॉर्मेशंस आर देयर। यहाँ पे भी वही सेम है, सिमिलर फॉर नो चेंज बिकॉज व्हेन एक्स इज पॉजिटिव मॉड एक्स इज एक्स, नो चेंज इन द राइट ऑफ वाई एक्सिस, ऑलराइट। डिलीट ओरिजिनल लेफ्ट, ओरिजिनल मतलब जो वर्क आपने x के साथ किया था यहाँ y के साथ करेंगे, ओरिजिनल लेफ्ट बट टेक इट्स इमेज, टेक इमेज ऑफ, नो टेक इमेज ऑफ राइट पोर्शन इन द लेफ्ट। ओरिजिनल लेफ्ट इज मीनिंगलेस बिकॉज here you are not going to get f of negative inputs, but take image of right in the left also because this is even function also. Take image of right in left too, left also. I mean ये ना इवन फंक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी है। ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए ग्राफ एफ एक्स का जो ग्राफ है समवॉट लाइक दिस, तो यहाँ पे ना आपको क्या करना है, ऐसा है मान लो, आपने क्या करना है, ओरिजिनल राइट को तो सेम रखना है। हो एक सेकेंड बच्चों, और लेफ्ट वाला रिमूव कर देना है ये पोर्शन, लेफ्ट ऑफ वाई, और राइट का ही लेफ्ट में इमेज ऐसे लेना है कुछ, तो कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इस पर आप टेकिन अ प्रॉब्लम, जिस ग्राफिकल क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं इस चैप्टर पे, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। सो इफ़ यू थिंक दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस, तो यू हमेशा ना कुछ कुछ चेंजेस करते रहो, मतलब सोचते रहो कैन यू मेक सम चेंजेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन कर रहा हूँ, सो दिस इज ईजी टू गेट, यू कैन प्लॉट बोथ द ग्राफ्स, ठीक है। इसे ग्राफ आप बनाओगे तो जब जैसे कि यहाँ पे ना आप मॉड एक्स का ग्राफ पता है,
-5 टेक बिलो, है ना, शिफ्ट इट below, I mean 5 minutes down, then again taking, so you'll get a W shape somewhat like this. कुछ इस तरह का जो है एक W shape आ जाएगा, ठीक है। और जब आप ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे, सपोज राइट हैंड साइड में 7 रेज टू द पावर -x का बना लो, और 2 7 रेज पावर -x में मॉड लगा दो, तो 7 का पावर 0 पे तो वैल्यू आपकी 1 है, तो ये ना ऐसे करके, एक सेकेंड, ग्राफ ऐसे करके जाएगी। 7 रेज पर -x का ग्राफ होता है, ये कुछ इस तरह से आता है, बट लेफ्ट पोर्शन हमें हटाना था, है ना, ऐसे, तो यहाँ पे हमें लेफ्ट नहीं लिया, हमने लेफ्ट को रिमूव करके राइट वाले का इमेज लेंगे इन द लेफ्ट, ठीक है, कुछ इस तरह का, ओहो ये, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे फाइनली वी कैन सी कि यहाँ कितने जो हैं सॉल्यूशंस आ गए, कॉमन सॉल्यूशन 1 2 3 एंड 4, देयर आर 4 सॉल्यूशंस, आंसर है 4 सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ग्राफिकली वी कैन ऑब्जर्व इट, दिस पॉइंट वाज आई थिंक 5, दिस वाज 1। कभी ऐसा होता है कि ये वर्टेक्स 1 वाला, मतलब ये ऊपर से जा रहा हो, 5 नीचे आ रहा हो, तो हैव टू चेक कि कहाँ पे क्या ऊपर नीचे वैल्यू, रिलेटिव वैल्यूज हैं। सो आंसर है 4 इन दिस केस। सो दिस वर द प्रॉब्लम्स टेकन इन दिस चैप्टर बच्चों। आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड यू, आई मीन बहुत सारी बातें आपको नए तरीके से पता चली होंगी। आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द एकलव्य प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। मैं यही कह सकता हूँ कि बहुत मेहनत से बनाया गया ये, और ये प्रोग्राम जो रन होता है इसमें सारे टीचर्स का जो है काफ़ी वर्क इन्वॉल्व है, हार्ड वर्क, इसका जो टेस्ट सीरीज़ है एंड ऑल। तो ये जो, इफ़ यू डोंट नो अबाउट एकलव्य प्रोग्राम, इट मीन्स यू आर मिसिंग समथिंग। आपका प्रिपरेशन जो है, अगर आप एकलव्य के साथ करते हो, स्पेशली जैसे अभी मेंस का एग्जाम होने वाला है, तो उसके बाद भी आप एकलव्य में इनरोल कर सकते हैं। अभी ऑलरेडी एकलव्य सेशंस आर गोइंग ऑन, बट आफ्टर द फर्स्ट मेंस एग्जाम वी आर अगेन गोइंग टू टेक स्टूडेंट्स फॉर एकलव्य प्रोग्राम, इनरोल फॉर एकलव्य प्रोग्राम। तो इसमें इतने रिगरस तरीके से हम इतने अच्छे कॉन्सेप्ट्स, ब्यूटीफुली ओरिजिनल थॉट्स के साथ प्रोग्राम रन करते हैं, टेस्ट सीरीज़ है, उसके डिस्कशंस हैं। सो बच्चों, अगर ये नहीं पता है तो आप गूगल कीजिए, गूगल इट, और वहाँ पे कोडा फोरम पे भी आप देख सकते हैं, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके फीडबैक्स देख सकते हो। सो क्या अमेजिंग फीडबैक्स उन्होंने दिए हैं, और आप मतलब मैं कह सकता हूँ इट्स द बेस्ट प्रोग्राम इन इंडिया, मतलब पूरे कंट्री में देख लो आप, तो इससे बढ़िया प्रोग्राम रिवीजन के लिए, स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि एक काफ़ी यूजफुल लिंक्स मिलेंगे आपको ऑन द नोटिस बोर्ड। यू कैन ज्वाइन, आई मीन द टेलीग्राम ग्रुप यूजिंग दिस लिंक, एंड यहाँ पे QR कोड है, इसके थ्रू भी आप जो भी अपकमिंग जो भी यहाँ पे करिकुलम है, जो शेड्यूल्स हैं, एंड जो करेंट जो चल रहा है एकलव्य के अंदर, वो सारे डिटेल्स आपको नोटिस बोर्ड पे मिल जाएंगे थ्रू दीज लिंक्स। ऑलराइट बच्चों, सो जस्ट गो एंड जस्ट सी कि क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। इफ़ यू आर एस्पिरेंट्स ऑफ 2022 एंड आई मीन यू आर गोइंग टू राइट दिस JEE एडवांस दिस ईयर, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे, और ये यहाँ पे QR कोड है, इसको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा आपको, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इफ़ यू आर गोइंग टू गिव JEE एडवांस नेक्स्ट ईयर 2023, तो आपके लिए ये यहाँ पे सारे डिटेल्स हैं, मिल जाएंगे। इफ़ यू आर गोइंग टू गिव JEE एडवांस इन 2024, तो यू विल गेट एवरी डिटेल हेयर। ऑलराइट, सो किस तरह से हम रन करते हैं, बड़ी सारी चीज़ें हैं। वी हैव अनदर वी इम्पैक्ट चैनल, जिसमें कि आपको कुछ प्रीवियस ईयर्स के JEE के सॉल्यूशंस, है ना, और बड़े अमेजिंग सॉल्यूशन 1 by 1 बनाए गए हैं। वेरियस डिफरेंट टीचर्स ने अपने अपने तरीके से बनाए हैं, और अमेजिंग सॉल्यूशंस हैं। KEPY के प्रीवियस फ्यू ईयर्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, एंड वी मेनी मोर थिंग्स यू विल गेट हियर। ओके, इट्स टाइम टू टीजर क्वेश्चन। हर सेशन में हम एक टीजर सवाल देंगे, टीजर क्वेश्चन देंगे, जो आपको ट्राई करना है। तो टीजर क्वेश्चन फॉर मंथ मई, दिस मंथ।
तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, लेट एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू एंड जी एक्स इज एफ ऑफ दिस composition is taken n times if the equation g of x equal to k, आई मीन जी एक्स का जो ग्राफ है, मतलब ग्राफिकली जाना आप, ठीक है, फॉर k बिलोंग्स टू 0 to 2 हैज़ 8 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन। जैसे अभी हमने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी किया था ना, कुछ इस तरह की बात है। आप ट्रांसफॉर्म करते करते देखना कि कितनी बार की ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जी एक्स इक्वल टू के फॉर एनी के बिटवीन 0 and 2 वी गेट 8 सोल्यूशन। माइट बी कि n इक्वल टू 1 पे ना आए, 2 पे ना आए, तो एक बार आप जस्ट ऑब्जर्व इट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये एक अच्छा सवाल है, इसको आप ट्राई करना, जैसे टीजर प्रॉब्लम, एंड आप इसको यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, टीजर क्वेश्चन को। सेंड योर सोल्यूशन टू दिस टीजर एट दिस email, okay, id provided eklavyasupport@vedantu.com with the subject line teaser questions subject name। यहाँ पे बच्चों ऐसा है कि आपको यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इसमें लिखना पड़ेगा कि ऑलराइट, यहाँ पे आपको नेम लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर दिस क्वेश्चन, तभी विल कम टू नो कि आपने, अदरवाइज ये माइट बी कि वो फिर रिजेक्ट हो जाए। तो आप यहाँ सब्जेक्ट नेम लिखना आपको टीचर क्वेश्चन इस ईमेल आईडी पे जाके, एंड विल चेक योर सोल्यूशन, इफ वी लाइक इट विल रीच आउट टू यू और डेफिनेटली विल बी बेनिफिटेड थ्रू दिस। ओके, सो ये सारी बातें हैं बच्चों, और आई होप यू एंजॉय टुडेज सेशन। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। ऑलराइट, टेक केयर।